Hello students. First of all, I would like to congratulate you all that you are promoted to the next year of your graduation, that is BSc third year, semester 5th. And in this semester, I will teach you zoology second paper. The name of this paper is Immunology and Molecular Biology of Prokaryotes. But I will teach you only immunology. The second part will be covered by Dr. Vinod Upadhyay. So let's see what are the syllabus of this paper. In Unit 1, you will study immunity. First topic is immunity. And in immunity, you will have to study the innate immunity, adaptive immunity, and various cells and organs of the immune system. The second topic of unit first is antigen, and the third topic is antibody. And in this topic you will have to study the unit structure of antibody and various classes of antibodies. So this is all about the unit 1. In unit 2 you will have to study the humoral immune response and concept of immunotolerance, autoimmunity and vaccines. So we will start from the unit 1 today. So your first topic is immunity. So the question is, what is immunity? Okay. So I think during corona period, most of the students may become aware about the term immunity or immunology. But still I will say that the term immunity is microbiologically. It is, or you can say that it refers to the state of relative resistance. Resistance means किसी चीज़ से अपने आप को बचाना, दूर रखना उस चीज़ को. So this relative resistance is of host, means host to infectious agents. So these infectious agents may be microbes, or they may also be microbes and their products. Now come to the host. What is host? So host may defense against the microbial infections. So it is fundamentally the function of two major types of immune system. Okay. So these two major types of immune systems are innate immunity, or you may also say that this is the natural immunity, this is the oldest immunity, and this may also known as non-specific immunity. So in different books there are so many terms for this type of immunity. This is also the first line of defense. So the innate immunity forms the first line of defense, and it is phylogenetically very older. Okay, means vertebrates के भी पहले अगर organisms में immunity नाम की कोई चीज़ थी, so that was non-specific immunity. Okay, and it is non-specific तो बता ही दिया. It is also immediate and rapid. It means कि इसके जो response होते हैं innate इम्यूनिटी के जो रिस्पॉन्स होते हैं, दे आर वेरी इमीडिएट, क्विक एंड रैपिड. इसके अलावा दे डोंट नीड एनी एक्सपोजर एंड दे मे ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन मेमोरी. सो ये लास्ट की जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये दो चीज़ें एक्चुअली अडेप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड है. वन इज़ एक्सपोजर, मतलब प्रायर एक्सपोजर टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो, एंड सेकेंड वन इज़ मेमोरी, मतलब पहले से अगर किसी पेशेंट कह लो, होस्ट कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो. सो पहले से किसी भी माइक्रोब्स का अटैक हुआ है अगर किसी होस्ट पर, तो वो मेमोराइज कर लेता है. सो इसको नॉन स्पेसिफिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक्सपोजर से कोई मतलब नहीं है और मेमोरी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है. सो लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं उनका रिलेशन अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर
स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको कह सकते हैं या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So last two topics, that is exposure and memory. These two things are related to acquired immunity or adaptive immunity. तो आगे बढ़ते हैं. Now come to the components of innate immunity. So इससे पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो इम्यूनिटी वर्ड है दैट वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट बर्नेट, BURNET. बर्नेट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इम्यूनिटी वर्ड को कॉइन किया था. एंड इम्यूनोलॉजी तो आप जानते ही हो कि स्टडी ऑफ साइंस इन विच डिफेंस सिस्टम, we will know about the defense system, host and defense system, that is immunology. And this was discovered by the scientist Behring. So इन्होंने ही एंटीबॉडीज़ को भी डिस्कवर किया था. बेहरिंग ने ही एंटीबॉडीज़ को भी डिस्कवर किया था. तो चलिए अब चलते हैं कंपोनेंट्स पे. सो दीज थ्री सर्कल्स you can see that these three are the components of the innate immunity. First one is the epithelial component. Epithelial component में आपका physical barrier आ जाएगा, chemical barriers भी आ जाएंगे, और ये दोनों physical and chemical barriers are also known as first line of defense system. तो चलते हैं पहले फिजिकल बैरियर पे. तो फिजिकल बैरियर को हम स्ट्रक्चरल या फिर एनाटॉमिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं. इसमें आपका स्किन आ जाएगी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स. तो ये दो चीज़ें आपके आ जाएंगी फिजिकल बैरियर्स में, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. अब स्किन की खासियत आपको ये भी बता दूं कि दिस इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन. सो इन केस अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन, सो दैट इज स्किन. द आंसर विल बी स्किन. नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन. सो म्यूकस मेम्ब्रेन में आपकी जितनी भी इनर लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, एपिथेलियम की, सो उन एपिथेलियम की सेल्स से जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. उस नेटवर्क को म्यूकस मेम्ब्रेन बोलेंगे. सो ये आपका लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाएगा, इसी में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी आएगा, एंड आपका जो आई की कंजंक्टिवाइटा होती है, सो कंजंक्टिवाइटिवा, इसको भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन में ही लेंगे. सेकेंड है केमिकल बैरियर्स. सो केमिकल बैरियर्स को हम कॉमनली फंक्शनल या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के नाम से भी जानते हैं. सो फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके जितने भी सिक्रीशंस हैं, एंड दीज सिक्रीशंस आर फ्रॉम स्किन, दे मे बी फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड दीज सिक्रीशन may also be from the glands. तो सिक्रीशंस फ्रॉम एनीवेयर लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स. तो इन तीनों में से कहीं से भी अगर सिक्रीशन हो रहा है तो दैट में बिलोंग टू द केमिकल बैरियर्स और फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इसका एग्जाम्पल है लाइक स्वेट, पसीना होता है, हम लोग को स्वेटिंग होती है. ऑयल ग्लैंड्स हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो सेबेसियस ग्लैंड. एंड टीयर्स, आंखों से आंसू बहता है तो टीयर्स में क्या होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव. सलाइवा में क्या होता है, लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है. सो इट इज बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है सलाइवा, क्योंकि इसमें लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है. एंड इसके अलावा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है. ये आप सब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. सो दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट किलर ऑफ साल्मोनेला टाइफी. सो टाइफॉइड की रोकथाम जो है इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से सिक्रेट होने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HCl है, उसकी वजह से हम टाइफाइड होने से, या बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, सो उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है ये HCl जो सिक्रेट हो रहा है.
So all these from the chemical barriers. So physical barrier, chemical barrier, both are first line of defense system. नेक्स्ट बायोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें हार्मलेस बैक्टीरियाज आ जाएंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपका सेल्यूलर भी होगा और ह्यूमरल भी होगा। ओके, सो सेल्यूलर से मतलब ये है कि वाइट ब्लड कॉर्पसेस, WBCs। WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट WBC में आपका न्यूट्रोफिल आ जाएगा, बेसोफिल आ जाएगा एंड इओसिनोफिल। तो 3 तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स। ऑल 3 आर ग्रैन्युलोसाइट्स। देन ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आपका मोनोसाइट्स आ जाएंगे एंड इसके अलावा लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। मोनोसाइट्स स्मॉलर सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के जब मेच्योर होते हैं तो यही मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है, या यू कैन से कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है मैक्रोफेजेस में। सो मोनोसाइट्स में बिकम मैक्रोफेजेस आफ्टरवर्ड्स। सो ए ग्रैन्युलोसाइट में एक तो आपका मोनोसाइट आ गया एंड दूसरा आपका लिम्फोसाइट्स है। अब ये लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो आपको ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी। ह्यूमोरल में आ जाते हैं, ये भी आपका सेकेंड लाइन में ही आएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में। सो ह्यूमोरल सिस्टम जो है इसमें आपके इंटरफेरॉन्स आ जाएंगे। तो इंटरफेरॉन्स भी एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं, यानी कि साइटोकाइंस का मतलब ये है कि मैसेंजर्स। जैसे आप लोग इंटरनेट पे, आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो मैसेजिंग करते हो ना, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे आपको मैसेज देना होता है उस पर्टिकुलर नंबर पे ही जाता है या उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही जाता है। तो पुराने ज़माने में हम इसको साइटोकाइंस को पोस्टमैन की तरह से पढ़ा करते थे कि भाई पोस्टमैन है जिसने मैसेज बस जहाँ भेजना है उस जगह पे ही, उस पर्टिकुलर जगह पे वो मैसेज चला जाता था। अभी हम मैसेंजर्स के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो साइटोकाइंस आर एक्चुअली मैसेंजर्स। सो इंटरफेरॉन्स, दिस इज अ वेराइटी ऑफ साइटोकाइन। सो इसमें आपका ट्यूमर्स के अगेंस्ट ये इंटरफेरॉन्स वर्क करते हैं एंड इसके अलावा कैंसर थेरेपी में इन इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो दे आर यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी। नेक्स्ट वन इज कीमोकाइंस। कीमोकाइंस भी साइटोकाइंस ही, बट दे आर स्मॉलेस्ट or you can say smaller cytokines. So these chemokines are also known as signaling proteins. They are actually signaling proteins. Third one is the complements. So complements are actually groups of 30 plasma proteins. So इन सब को हम आगे चल के डिटेल्स में इन सब की स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवरव्यू ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोस्कोप्स। दिस इज वन overview of the innate immunity. Next one is the exist before exposure to microbes. Another one is innate immunity found in plants, insects as well as in vertebrates. Now the 3 essential functions of innate immunity. First one is initial response to microbes. Second one is it may eliminate damaged cells. Then it initiate the tissue repair. यानी कि पहले जो भी डैमेज सेल्स होते हैं उसको बाहर निकालने का, खदेड़ने का काम करता है एंड देन उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का भी काम इनेट इम्यूनिटी द्वारा ही होता है. सो वेरियस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे मे वर्क. थर्ड वन इज द इट में स्टिमुलेट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये मत समझना कि इनेट इम्यूनिटी अलग है और अडेप्टिव अलग है. ठीक है, अलग है, बट
बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी ही अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नाउ कम टू द टू मेजर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। इनेट इम्यूनिटी के दो मेजर रिस्पॉन्सेस हैं। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेमेशन एंड सेकेंड वन इज द एंटीवायरल डिफेंस। तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, सो इट इज एक्चुअली लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है, लोकलाइज्ड होगा। ओके, सो इट मे बी ऑन द स्किन और लाइक रेडनेस, कभी आप देखते हो तो स्किन लाल हो जाती है, कभी कभी होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, इसके अलावा कभी आपको पेन भी होता है, एंड कभी कभी हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से हीट रिलीज़ होता है। सो दीज आर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज विच आर लोकलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि पूरे में ही होता है, वो लोकल होता है। ओके, तो किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया में, लाइक अगर आपने कुछ हाथों से कुछ ऐसे भूसे उसे वाला काम कभी किया हो तो पता चलता है कि उस स्किन के थ्रू एंटर किया, ठीक है। सो एंटर करने पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं। सो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है कि भाई कोई चीज़ अंदर आ गई है या एंटर करना चाह रही है, सो इट मे कॉज हार्म टू योर बॉडी। सो जो सेल्स होती हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस की, वो सेल्स इस तरह का रिस्पॉन्स शो करती है। तो रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अलर्ट हो, एक तरह से अलर्ट करना कि इस तरह की प्रॉब्लम है जिसको कि अब ख़त्म करना है। सो अलार्मिंग, दीज आर अलार्मिंग, एक्चुअली अलार्म देना होता है कि भाई रेड हो गया तो ये अलार्म मिला कि हाँ भाई कोई चीज़ एंटर करने की कोशिश कर रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर ज़्यादा अंदर चली गई तो। सो रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, फूल जाना, सूज जाना, या फिर दर्द होना, पेन होना, और या फिर हीट रिलीज होना। ठीक, यहाँ हीट होगा। Heat. Okay, now next one is the antiviral defense. It is actually delaying virus multiplication. So जो ये होता है एक्चुअली इंटरफेरॉन्स के सिग्नलिंग के द्वारा ही ये पूरा प्रोसेस होता है एंटीवायरल डिफेंसिंग का, जिसमें कि वायरस मल्टीप्लिकेशन को डिले किया जाता है, किसी तरह से मल्टीप्लाई ना करे वायरस, तो ये काम होता है। सो साइटोकाइन में इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन के द्वारा ये काम होता है, इंटरफेरॉन्स की सिग्नलिंग के थ्रू। देन अब हम आते हैं, आपको मैंने ये बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स जो बताया है, it may belong to the external defense. Okay, first line of defense is external defense and the second line of defense is internal defense. Okay, so this is the internal defense, also known as second line of defense. अब second line of defense में आपके WBCs आ जाएंगे। तो WBCs में मैंने आपको मोनोसाइट्स भी बताया था, तो मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके अलावा इंटरफेरॉन्स भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं, इन सब के द्वारा ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है। सो मैक्रोफेजेस एक्चुअली दे मे फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कोई भी एंटीजन आया उसको एनकाउंटर करने के लिए ये मैक्रोफेजेस होते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, लिम्फोसाइट्स। ओके, WBCs हो गए। नेक्स्ट वन इज द
लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स में मैंने आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं और टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि दो वैरायटी है लिम्फोसाइट्स की। सो बी लिम्फोसाइट्स जो नाम पड़ा है दैट इज बिकॉज ऑफ बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। और ये बर्सा ऑफ फैब्रिसियस एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज lymphatic gland present in cloaca of young bird। यंग बर्ड की क्लोएका में लिम्फेटिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। उसी पर बेस्ड इस लिम्फोसाइट का नाम है बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट्स दैट इज रिलेटेड टू थाइमस। सो थाइमस ग्लैंड के लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो दिस इज all overview of innate immunity।